اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، ہمیں ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت غزہ، فلسطین اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے۔ انٹرنیشنل نیوز ہے، لیکن ملک میں اس وقت بڑے پیمانے پر لوگ حماس اور اسرائیل کی جنگ کے حالات کو جاننا چاہتے ہیں، اس لیے پہلی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ معرکہ طوفان اقصی جو حماس نے شروع کیا ہے اس کا تیسرا دن ہے۔ غزہ کا مکمل محاصرہ کر لیا گیا ہے اور اب اجتماعی قتل عام یہودیوں، اسرائیلیوں کی طرف سے شروع ہو گیا ہے۔ اب دنیا کے بڑے بڑے ظالم اور آتنکوادی خاموش رہیں گے، اب قتل عام نظر نہیں آئے گا۔ 1 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ رہائشی علاقوں پر اسرائیل کی وحشیانہ درندگی اور بمباری جاری ہے۔ 560 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ القسام نے اسرائیلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر راکٹوں سے حملہ کر دیا۔ کئی ممالک نے تل ابیب کی فلائٹس کو رد کر دیا ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ اب تک 1000 یہودی بھی مارے جا چکے ہیں، جہنم میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگر امریکہ مداخلت کرتا ہے تو خطے میں کوئی سرخ لکیر نہیں ہوگی۔ وہیں پر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ حزب اللہ اور ترکیہ کی امریکہ کو جنگ سے دور رہنے کی نصیحت ہے، یعنی حزب اللہ نے اور ترکیہ نے امریکہ کو نصیحت کی ہے کہ جنگ سے تم دور رہو۔ وہیں پر حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ ہم عظیم کامیابی کی طرف ہے اور انشاءاللہ کامیابی بہت جلد قدم چومے گی۔ جہاد اسلامی نے یہ بھی کہا ہے کہ فتح بہت قریب ہے، ہم طاقت کا توازن بدل دیں گے۔ وہیں پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل نے حماس پر جو حملہ کیا ہے وہ مشرق وسطی کو بدل دے گا۔ امریکہ اسرائیل کی مدد کو تیار، طیارہ بردار بحری جہاز روانہ، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل جس کی ناجائز اولاد ہے یعنی امریکہ کی، وہ امریکہ اپنے ناجائز بچے کی مدد کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اب دوسرے ملکوں کے پی ایم سی ایم سب خاموش رہیں گے۔ اب معصوم فلسطینی شہریوں کو، سول سوسائٹی کے لوگوں کو مارا جائے گا، تو اب اسرائیل کا آتنکواد جو 70 سالوں سے 50 سالوں سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اس آتنکواد پر لوگ خاموش رہیں گے۔ یعنی دنیا دوغلی ہے اور دنیا کے لوگ بڑے بدماش ہیں، بڑے آتنکوادی ہے، ظالم کو ظالم کہنے کو تیار نہیں ہیں اور مظلوم کو ظالم بتانے کو تیار ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے کہ 5 اسٹیٹس کے اسمبلی الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے۔ چھتیس گڑھ میں 2 مرحلوں میں الیکشن ہوگا اور مدھیہ پردیش میں، ایسے ہی مدھیہ پردیش، راجستھان، تلنگانہ اور میزورم میں 1 مرحلے میں ووٹنگ ہوگی۔ خبریں ہیں کہ 7 نومبر کو پولنگ ہوگی،
3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बाकायदा इसकी इत्तला दे दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन 5 रियासतों के असम्बली इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। इंतखाबात का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। तमाम रियासतों के जो रिजल्ट है, नतीजे है, वो 3 दिसंबर को आएंगे। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त हैदराबाद से आ रही है। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया की एक साइट है इंस्टाग्राम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखी करने वाला कमबख्त खबीस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरफ पुलिस पूरे शहर में अमन बरकरार रखने के लिए रात दिन कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ फिरका परस्त और आतंकवादी जहन के भगवा आतंकवादी पुरअमन फजा और शांति वाली फजा को खराब करने की, मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं। जराये के मुताबिक कारवान का रहने वाला शरपसंद आतंकवादी रघुवेंद्र राव ने फिरका परस्ती का, आतंकवाद का मुजाहरा करते हुए माहौल को खराब करने की कोशिश की और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी की। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही शुएब, अस्मा और बासित, जो ह्यूमन राइट्स जस्टिस मिशन से ताल्लुक़ रखती है, पुलिस स्टेशन पहुंची और शरपसंद आतंकवादी रघुवेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सोशल मीडिया पर रब्बुल आलमीन की शान में गुस्ताखाना कलिमात लिखने की इत्तला पर मकामी अफराद की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन पहुंच गई है और मुजाहिद नगर झर्रा के रहने वाले मोहम्मद खान ने इस वाक़े पर रघुवेंद्र के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। खबरें आ रही है कि इस आतंकवादी रघुवेंद्र राव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगला दिन बड़ी खबर इस वक्त रियासत महाराष्ट्र से आ रही है कि लाइट मोटर व्हीकल को टोल माफ है। नायब वजीर आला फडणवीस ने यह बयान दिया। अब उनके बयान के बाद महाराष्ट्र में हंगामा हो गया। मनसे के लोगों ने एक टोल नाके पर बेदारी मुहिम चलाई, एक टोल नाके को आग लगा दिया, कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब कांग्रेस ने यह सवाल किया है कि जब लाइट मोटर व्हीकल का टोल माफ है तो पैसा क्यों वसूला जा रहा है। और कांग्रेस ने सवाल किया है कि फिर सारे पैसे कहां गए हैं। नाके पर गाड़ियों से मजीद चार्ज वसूल किए जाने के मामले में मनसे ने हड़ताल शुरू की थी। राज ठाकरे ने टोल नाकों पर आग लगाने की धमकी दी। इस दरमियान फडणवीस ने बयान दिया कि टोल नाका लाइट मोटर व्हीकल के लिए मुफ्त है और कोई चार्ज वसूल नहीं किया जाता है। इस पर मनसे ने फडणवीस का वो वीडियो लेकर टोल नाकों पर बेदारी मुहिम शुरू कर दी है और लाइट मोटर व्हीकल को टोल नाकों से मुफ्त गुजरने का कहा है। हैदराबाद से एक ऐसी ही बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है कि हैदराबाद में सिलेबस बुक में, निसाबी किताब में नाउज़ बिल्लाह हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्याली तस्वीर शाये की गई, जिसको लेकर मुसलमानों में गुस्सा फैल गया। मुसलमान पुलिस स्टेशन के बाहर एहतजाज करने लगे और नारेबाजी शुरू हो गई। खबरें हैं कि सिलेबस बुक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्याली तस्वीर की इशाअत पर स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए पुराना शहर हैदराबाद के काला पत्थर पुलिस स्टेशन के सामने मुस्लिम नौजवानों ने बड़ी तादाद में एहतजाज किया। बरहम नौजवानों ने इस वाक़े पर शदीद रद्द अमल जाहिर करते हुए नारेबाजी की। इन नौजवानों ने मीडिया को बताया कि बॉयज टाउन स्कूल की 4वीं जमात की समाजी इल्म की किताब में यह तस्वीर शाये करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की कोशिश की गई। इन नौजवानों ने कहा कि 5 दिन पहले ही इस सिलसिले में फलकनुमा पुलिस से शिकायत की गई थी, ताहम इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के जरिए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस किताब का प्रिंटर इंटरनेशनल है। उन्होंने कहा कि इस प्रिंटर को तस्वीर की इशाअत का कोई हक नहीं है। इस किताब की इशाअत करने वाले के खिलाफ फौजदारी मुकदमा कायम किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुसलमानों को यह भी यकीन दिलाया गया कि स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अगला दिन मुंबई से बड़ी सियासी हलचल की खबर आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। उद्धव ने जबरदस्त बीजेपी को झटका दिया है और खबरें आ रही है कि बीजेपी के कई लीडरान ठाकरे ग्रुप में, यानी उद्धव ठाकरे के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। लोकसभा और असेंबली और म्युनिसिपल इलेक्शन से पहले ही मुंबई में बीजेपी के बड़े लीडर शिवसेना
उद्धव बाला साहेब ठाकरे ग्रुप में शामिल हो गए, जिसकी वजह से बीजेपी को जबरदस्त झटका उद्धव ठाकरे की जानिब से लगा है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद कई लीडरों ने इख्तिदार की ख्वाहिश के लिए ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए थे, लेकिन मुंबई में अब उल्टी गंगा बहती हुई नजर आ रही है। मुंबई में बीजेपी के बड़े लीडरों ने शिवसेना यानी बाला साहेब ठाकरे के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। तमाम बड़ी पार्टियां आने वाले लोकसभा, विधानसभा और म्युनिसिपल इलेक्शन की तैयारियां कर रही है। ख्वाहिशमंदों ने भी कतारें लगानी शुरू कर दी है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आयादिन बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी, जात पात पर मबनी जनगणना, जिसको लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है और बीजेपी ये काम नहीं करना चाहती है कि जात पात के एतबार से जनगणना हो, मर्दमशुमारी हो, गिनती हो, क्योंकि इसमें पोल खुल कर रह जाएगी कि कौन कितने हैं। खैर, कांग्रेस ने कह दिया कि हमारी रियासतों में जहां जहां हमारी पार्टी की हुकूमत है, हम वहां पर जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी कराएंगे और यह भी कहा गया कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मर्दमशुमारी के हक में फैसला आया है। वहीं पर खबरें आ रही है कि अपोजिशन इत्तेहाद यानी इंडिया भी इस फैसले से मुत्तफिक है। यानी अपोजिशन इत्तेहाद का भी यह कहना है कि हर जगह जात पात पर मबनी मर्दमशुमारी होनी चाहिए। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, जालंधर से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जालंधर में एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ है। फ्रीज कंप्रेसर फटने से एक ही कुंबे के 6 अफराद की मौत हो गई है। पंजाब के जालंधर के अवतार नगर में इतवार की रात देर गए एक घर में फ्रीज कंप्रेसर फट जाने से लगने वाली आग में एक ही घर के 6 अफराद की मौत हो गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस आदित्य ने बताया कि जालंधर के अवतार नगर गली नंबर 13 में इतवार की रात तकरीबन 10 बजे एक घर में धमाके के बाद आग लग गई, जिसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। इस वाकये में 5 लोगों की तो जगह पर मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों की शनाख्त यशपाल 70 साल, रुचि 40 साल, मनशा 14 साल, दिया 12 साल और अक्षय 10 साल और इंद्रपाल के तौर पर की गई है। आदित्य ने कहा कि पुलिस ने तहकीकात के लिए फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की टीम को बुलाया है। आया दिन बड़ी खबर आ रही है हरियाणा, नूह और मेवात के इलाकों से। आप जानते हैं कि नूह में भगवा आतंकवादियों ने किस तरीके से ऊधम मचाया था और किस तरीके से हथियार, गोली, बारूद, तलवारें चलाई थी पुलिस की मौजूदगी में। भगवा आतंकवादियों के हौसले बुलंद है, क्योंकि कहीं पर भी किसी भगवा आतंकवादी पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही है। खैर, मार भी खाए मुसलमान, घर दुकानें मकान भी जले मुसलमानों की, और फिर मुजरिम भी बनाए जाते हैं मुसलमान। लेकिन अल्लाह जमीयत उलमा को बेहतरीन सिला, बेहतरीन बदला दे। जमीयत उलमा तमाम केसेस देख रही है और अभी अच्छी खबर आ रही है कि नूह फसाद मामले में मजीद 5 मुसलमान नौजवानों को सेशन अदालत ने जमानत पर रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी कौमी सदर जमीयत उलमा की हिदायत, उनके आदेश पर जमीयत उलमा हिंद की कानूनी इमदाद कमेटी की कोशिशों से यह जमानत मिली है। अल्लाह ताला जमीयत उलमा की कोशिशों को कामयाब फरमाए। और मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि अपने अपने गाँव, अपने अपने शहर और इलाकों में जमीयत उलमा की तंजीम से जुड़िए और जमीयत उलमा को साथ दीजिए, जमीयत उलमा को मजबूत कीजिए। और हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी मजबूत तंजीम अगर कोई है तो वो जमीयत उलमाए हिंद ही है। और जमीयत उलमाए हिंद का इस मुल्क पर भी एहसान है, क्योंकि मुल्क को गोरे अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में पहली लाइन में जमीयत उलमाए हिंद के उलमाए किराम पहली लाइन में खड़े हुए थे और अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। नाज़रीन, तमिलनाडु से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। तमिलनाडु में एक पटाखे की फैक्ट्री में धमाका हुआ। धमाका इतना खतरनाक था कि 10 अफराद की मौत हो गई है और 14 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं।
जबरदस्त आग लगी धमाके के बाद, जिसमें 3 खवातीन समेत 10 मजदूरों की मौत और 14 दीगर जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता कल सुबह आग लगने से लगातार धमाके हुए और कई गोदामों और शेडों को इन धमाकों ने तबाह कर दिया। वहां मुल्की साख्ता पटाखों और इंतहाई आतिशगीर केमिकल्स का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद था। इब्तदाई तहकीकात में यह बात सामने आई है कि केमिकल को संभालने के दौरान रगड़ के बाइस धमाका हुआ, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर आग लगी। आग में जलने की वजह से लाशें इस कदर मस्ख हो चुकी थी कि उनको पहचानना भी मुश्किल था।